And in the last lecture, students, I told you very clearly about a particle whose direction of velocity and position vector when it changes at each instant. Students, the path is circular, students. And further, I told you when the magnitude of velocity remains constant, students, its motion is uniform circular motion. And when the magnitude of velocity does not remain constant, students, it's non-uniform circular motion, students. Then further, I told you that is for uniform circular motion, students, your speed and angular velocity both remains constant, students. Whereas in terms of non-uniform circular motion, students, your speed and angular velocity does not remain constant, students. So that's what a student should keep in mind very properly. Then what exactly it's uniform circular motion, what exactly it's non-uniform circular motion. Students, can anybody give me examples of uniform circular motion and non-UCM students? कोई examples दे सकता है? UCM और non-UCM के examples दे सकता है? Abhishek Chaudhary, can you give example? Alia, can you give examples? Vishal, can you give example? Priya, can you give example? Prachi, Zalke, can you give example? Prachi, Gaurav, can you give example? Example दे सकते हो? Give me examples of UCM and non-UCM students. Anyone? Sir, I don't know it is an example of UCM or not, but merry-go-round? No, my dear, not necessarily. It can be. उसका motion accelerate भी हो सकता है, decelerate भी हो सकता है. Okay, sir. अरे डे टू डे लाइफ में है ना यार, क्या कर रही हो? देखा ना साक्षी ने, देखो कैसे डाल दिया. साक्षी can't you unmute? साक्षी can't you unmute? आज लब्धि क्यों नहीं है? यस सर, बट आपने किसी और को पूछा इसलिए मैंने टेक्स्ट. तो तुम और पूछा तो तुम आंसर नहीं दे सकते हो. कशिश आंसर नहीं देती है. हाँ, आज लब्धि कहाँ पे है? शी इज नॉट देयर. सर, आज लब्धि को ये वैक्सीन लगाया ना, तो वो बहुत बीमार है बेचारी. उसको तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है उसकी. बीमार हो गई? हाँ. अरे बाप रे. प्लीज स्टूडेंट्स डू टेक केयर. हाँ, तो ध्यान रखो बाबा, तुम बाहर जाओ मत अभी घर से. नहीं सर, वो तो उसने वैक्सीन लिया ना, तो वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता ही है. अच्छा, फाइन. Okay. Yes. Can you tell me, Sakshi? Can you give an example? Which example you gave it? Motion of electron around its nucleus. Very good. Motion of electron around the nucleus. देखा? Kashish, she gave an example. है ना? Electron revolving around the nucleus performs uniform circular motion, and for uniform circular motion, you need force. Big force here, students, and that is called as force centripetal, which is also called as a radially inward force, students. वैसे ही, if I give an example, students, planets revolve around the sun. It performs uniform circular motion, students. Then I can give an example of moon, the natural satellite of Earth, or the artificial satellites of Earth, which revolves around the Earth. They perform uniform circular motion. ये सारे examples किसके हैं? UCM के लिए examples है, students. जहाँ पे a body moves along a circular path but speed remains constant, students. For example, a car moving on a circular track with constant speed. लेकिन अगर मैं नॉन यूसीएम के लिए जाऊं तो yes, you can speak about non-uniform circular motion is what? Motion of a giant wheel. Students, कभी giant wheel में बैठे हो students? Students? Yes, sir. So giant wheel में बैठते हो तो मुझे बताओ, तुम जब giant wheel में बैठते हो यश, मुझे बताओ, when do you shout? While going up the giant wheel you shout, or while coming down you shout? While going down. Yes. यानी नीचे की तरफ आते हो तभी स्पीड बढ़ती है ना, और ऊपर जाने के टाइम पे स्पीड कम होती है.
So vertical sir. circular motion, ये vertical circular motion है. Students, vertical circular motion can be considered as one of the examples of non-UCM. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं UCM का एग्जांपल दूं, so I can consider Earth and surrounded by moon. I can consider performs uniform circular motion. The speed of the moon remains constant. Which forces required over here? Force centripetal. So how is force and velocity vector are mutually perpendicular to each other, students? That's first example I can consider. Second example I can consider will be electron revolving around, the electron revolving around the nucleus. Electron revolving around the nucleus of an atom of an element. See the direction of velocity. The direction of velocity goes on changing, but what about the speed? Remains constant. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये जो वेलोसिटी है और ये अंदर का जो एक फोर्स लग रहा है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स. तो ये भी किसका है? ये एग्जांपल किसका है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जहां पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. तीसरा एग्जांपल आई टोल्ड यू अबाउट अर्थ revolving around the sun, performs uniform circular motion, direction of velocity remains constant. ये कौन सा फोर्स है? यहाँ पे भी फोर्स सेंट्रीपिटल. तो तुम्हारा जो फोर्स सेंट्रीपिटल है, जो अंदर की तरफ फोर्स है, और वेलोसिटी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पे भी तुम्हारा स्पीड क्या है? कांस्टेंट है स्टूडेंट्स. ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ये सारे एग्जांपल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो सारे एग्जाम्पल के अंदर एक फोर्स तुम्हें चाहिए और चाहिए. कौन सा फोर्स है? Which force we consider is, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स is being provided by whom? By the gravitational force of Earth. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो फोर्स सेंट्रीपिटल है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो फोर्स है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. यहाँ पे भी जो फोर्स सेंट्रीपिटल है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हुए स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Is the audio and video is fine with all of you all? सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके. यानी ये तीनों किसके एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स है, जहाँ पे स्पीड यानी एक फोर्स है जो अंदर की तरफ हमेशा एक्ट होगा, व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस आल्सो अबाउट दिस फोर्स यूसीएम के अंदर. अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एग्जांपल देता हूँ ना? अगर मैंने बोला नॉन यूसीएम, नॉन uniform circular motion, so I can give an example of a giant wheel. Students, अगर मैं giant wheel का example दूंगा, तो don't you think so that the velocity will go on changing, है ना? क्योंकि giant wheel का मतलब क्या हुआ? Effect of gravity आएगा. Effect of gravity will play a role, है ना students? Effect of gravity तो रोल करेगा. यानी जो lowest position, इसको हम बोलते हैं lowest position. Lowest position पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? टॉप मोस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? ये देखो, सारे केस में उसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्पीड इज नॉट कांस्टेंट स्टूडेंट्स. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. ये हमेशा ध्यान में रखना. अगर तुम देखोगे, अगर सपोज ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट्स, और ये रेडियस है,
ओके जो बॉडी लोवेस्ट पोजीशन पे होगा स्टूडेंट्स, उसकी जो वेलोसिटी होगी एट द लोवेस्ट पॉइंट, वो होगा √5 g small r. Small r is what? Radius of the circular path. यानी सबसे लोएस्ट, ये हम डिराइव करेंगे आगे जाके। अभी अभी फॉर द टाइम बिंग तुम ध्यान दो कि यहाँ पे जब भी बॉडी लोएस्ट पोजीशन में होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे वो डायमीटर पे आएगा, जैसे वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे आ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तुम लोग सर ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ये बॉडी तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? सर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी? √3gr, कम हो गई। टॉप मोस्ट पोजीशन में क्या होगा? सर टॉप मोस्ट पोजीशन में उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस वो बॉडी का स्पीड जीरो हो जाएगा, वो तो नीचे गिर जाएगा, यानी यहाँ पर भी उसको स्पीड होनी जरूरी है। सो द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, the velocity at the topmost position will be √gr। यानी देखो कुछ स्पीड है लेकिन कम है, यानी जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन जैसे मैं नीचे आऊंगा वापस स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे वापस मैं लिख सकता हूँ √3gr, और फिर वापस मैं लिख सकता हूँ √5gr। This is what is called as motion of a body in a vertical plane. So these are the examples of uniform circular motion, students, and this is an example of non-uniform circular motion. क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. Yes. So before going for circular motion, students, a student should keep in mind that circular motion we consider is motion of a body along the circumference of a circle, where the direction of velocity and the direction of velocity always goes on changing at each instant, students. Is that clear? Direction of velocity goes on changing at each instance. The path is always said to be circular, students. Now, uniform circular motion with speed constant है, यहाँ पे speed constant नहीं है. Now, students, when you move further ahead, let us go for small relations. Uniform circular motion में क्या है और non-uniform में क्या क्या? Let us understand that, students. Okay, students. अभी ये ध्यान में रखना, students. अगर मैंने तुम्हें पूछा कि suppose ये है तुम्हारा center of the circular path, students, listen carefully, yeah? And the body is initially at point over here. The particle is initially over here. If a particle traces small angle in small interval of time, तो ये path trace किया in very small interval of time. Path क्या है, students? What is the path traveled by the body? The path is circular only. ये path circular है, students. The path is circular. Agreed, path is circular. लेकिन मैंने क्या किया है? Let us say that the angle which the body performs at the center is very small. तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। तो अगर मैं लिखूं व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं नाम दूंगा इनफाइनाइटेसिमल, तो इट्स इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर displacement is always delta theta, which is very small, and this angular displacement is always measured in radians. The word infinitesimal का मतलब क्या? Very short, very small angular displacement. Students, अगर angular displacement बहुत छोटा है students, तो what about the length of the arc trace also is very small. तो वो क्या बन के आएगा? Sir, infinitesimal displacement, that is, this is infinitesimal displacement along arc, जिसको मैं लिखूंगा डेल्टा एस. तो कैन आई से इट कैन बी लेंथ ऑफ कॉर्ड आल्सो? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कैन इट बी लेंथ ऑफ कॉर्ड? हाँ है ना स्टूडेंट्स? गेटिंग इट? अगर Yes, sir. तुम्हारा पार्टिकल सर्कुलर है
और एक मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, अगर थीटा छोटा है तो लेंथ ऑफ आर्क इज आल्सो वेरी स्मॉल, so it can be length of chord. What exactly r over here stands for? So r stands for position vector. R stands for position vector. Now students, can you tell me what exactly the relation between delta theta, delta s and r? हाँ स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? तो तुम क्या बोलोगे? तो डेल्टा थीटा is equal to delta s upon r. Therefore, can I say delta s? Are you getting it? Will be equal to what? Delta theta into r. Delta theta into r. मुझे बताओ कशिश, is delta theta into r is the correct way of writing it? या r into delta theta is the correct way to write down? R into delta theta. Hmm? R into delta theta. r into delta theta. Are you sure? मुझे बताओ चलो। ये मोशन मैंने किस how is a particle moving? How is a particle moving? Is the particle moving clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या हुआ तुम्हारा? डेल्टा एस विल बी एक्टिंग अलोंग अ गिवन प्लेन. लेट अस से द पार्टिकल इज मूविंग इन एन एक्सवाई प्लेन. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा टेंजेंशियल जाएगा ना, डेल्टा एस तो टेंजेंशियल जाएगा. आया ना? Yes sir. वो तो वाई एक्सिस होगा, रेडियस वेक्टर को मैं एक्स एक्सिस लूंगा. तो अभी 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 इसके पहले तुम बोल रहे थे सर आपने कुछ आई जे के सिखाया था, तो अभी अभी दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? सिखाया था ना तुम लोग को. क्या बताया था मैंने? अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हो स्टूडेंट्स, और ये है आई, ये है जे, और ये है के, तो मुझे बोलो व्हाट एग्जैक्टली जे कैप विल बी इक्वल टू. तो तुम बोले सर जे कैप विल बी के क्रॉस आई. तो तुम्हारा करेक्ट रिलेशन होगा डेल्टा थीटा क्रॉस आर. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes sir. Please, is this clear to all of you all? I'm not only teaching, please, I'm not teaching only Sakshi. Okay? Sir Kashish. Oh, very sorry. Kashish. Please, because Sakshi, देखा कैसा Kashish and Labdi, see how are they? What about the rest of the students? Are you getting it? Abhishek, Alia? Yes, Riya? sir. Sir, will you repeat that I cap and J cap? मुझे बताओ मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? हाउ इज द मोशन टेकिंग प्लेस? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज में. तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग ने वेक्टर्स पढ़ा था. मेरा ये जो मेरा डेल्टा एस वो कौन सा एक्सिस पे जा रहा है? वहाँ एक्सिस पे जा रहा है. अगर तुम सपोज अगर यही डायग्राम मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टली बता दिया, गेटिंग इट? इसी को वापस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसी को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ. चलो ये ऐसे मैंने प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया और बॉडी ऐसे दिया मैंने. चलो तो ये मेरा डेल्टा एस होगा, है ना? दिस इज डेल्टा एस. ये है तुम्हारा लेंथ ऑफ आर, ये वाई एक्सिस पे हुआ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस. तो जेड एक्सिस पे होगा ना तुम्हारा डेल्टा थीटा, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा. आया ना? हाँ सर. तो अगर मैं आई जे के लिखता हूं तो ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है. तो व्हाट एग्जैक्टली जे कैप विल बी? के क्रॉस आई. तो डेल्टा थीटा क्रॉस आर, because delta theta will be acting along z axis. Agreed? Yes. Now when you look into it, delta is equal to delta theta cross r. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Is this part clear to all of you all? Yes sir. Everybody inside this group, is it clear? Yes, sir. All Yes, of you all. sir. Dilsha, what about you? Prachi, Gaurav, what about you? You're not still unmuting yourself. Prachi, Gaurav, you texted Bhairavi. Can't you text over here?
Bhairavi, are you there, Bhairavi? Bhairavi, are you there? Even she's also not there now. Bhairavi, I'm again asking you, if you're not replying, you are out of the lectures. Fine, out of the lectures. Since अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा तो डेल्टा एस इज डेल्टा थीटा क्रॉस आर, ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ द साइड्स एंड टेकिंग डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. तो जो हम लोग ने किया था ना बेसिक मैथ्स में, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ द साइड्स. तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रेशियो ऑफ इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time, however short the time interval may be, that is equal to limiting ratio of infinitesimal angular displacement with respect to time, however short the time interval may be, cross R. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने लिमिट्स ले लिया दोनों तरफ. Limiting ratio because the displacement is very small. So can I go for limiting in order to go for finite? Yes, I can go for finite. यानी अगर मैं लिमिटिंग रेशियो लेता हूँ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो आई कैन सिंपली राइट ऑन दिस इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट, जिसको मैं लिखता हूँ डी एस बाई डी टी. तभी जाके स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी एस बाई डी टी, ये क्या होगा, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो क्या लिखोगे तुम, इसको डी थीटा बाई डी टी लिखोगे क्रॉस आर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? वापस मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, a particle is performing circular motion in anti-clockwise direction. Let us say that the particle covers a very small angle. So the angle is very small, जिसको हम बोलते हैं infinitesimal angular displacement delta theta. The radius vector is constant. What about the displacement? So the displacement is also very small. Infinitesimal displacement along the arc, that is delta s. What is the relation? Delta theta is equal to delta s by r. So delta s is equal to delta theta cross r. Why delta theta cross r? Because the body is moving in anti-clockwise direction. So what am I doing? Taking limits on both the sides, tending to 0. So limiting ratio of infinitesimal angular displacement with respect to time. So we can consider finite at a particular instant आ गया. So ds by dt, d theta by dt cross r. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Is it clear students? Yes. Yes, sir. Okay, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना students, exactly same concept I've given you in basic maths के अंदर. Now students, what is ds by dt? Simply consider is, sir, it's the rate of change of rate of change of displacement with respect to time. Is it tangential? Yes. ये ds by dt क्या देता है तुम्हें? Velocity. So can I put this as v? ये tangential velocity की बात कर रहा है. What is d theta by dt? Sir, it's angular velocity, omega cross r. So are you getting the formula? V bar is equal to omega bar cross r bar. क्या ये clear हुआ students? देखो, displacement upon time, velocity. Linear displacement, angular displacement upon time, angular velocity. Cross position vector. क्या ये clear हुआ students? All of you all. हाँ sir. Yes, sir. Alia, is it clear? Ria, is it clear? Yes, sir. Abhishek, Chaudhary, clear? Bhairavi, is it clear? Bhairavi, again you are not replying. Bhairavi, are you there? Yes, sir. तुम क्या कर रहे हो? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए अभी आपने जब निकाला तब मैं वापस ज्वाइन हुई. मैंने निकाला नहीं, मैंने तुम्हें मीटिंग रूम में ही रखा था, तुम सुनते नहीं हो. तुम और तुम्हारी फ्रेंड रिया दोनों जन, सॉरी रिया वो दैट अदर गर्ल प्राची,
Prachi Zalke, are you there? Prachi Zalke, are you Yes, sir. there? Okay. So now when you look into it, students, listen carefully. हमें मिलता है linear velocity is equal to omega cross r. यानी linear velocity is equal to angular velocity cross your position vector. V is equal to omega bar cross r bar. और ये कहाँ से मिला students? By simply differentiating displacement with respect to time. यानी ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, कभी भी पार्टिकल जब भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव होगा तो उस टाइम पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? ds इज इक्वल टू d थीटा क्रॉस r, हमेशा ये होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन में. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर? v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. Now students, if I happen to take this as an equation, स्टूडेंट्स कोई मुझे बता सकता है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिल सकता है मुझे? तो बता सकता है स्टूडेंट्स? यस, एनीबॉडी? I've got v is equal to omega bar cross r bar. Students, I want to differentiate. सर ऊपर वाला ही पार्ट होगा ना, ds by dt d theta by dt. हाँ, मैंने मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, v is equal to omega bar cross r bar को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आंसर आएगा बता सकते हो? v bar is equal to omega bar cross r bar. मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करूंगा? वेरी गुड, भूल गया ना बेसिक मैथ्स? कशिश, सर कौशिक, मैंने बेसिक मैथ्स ही नहीं, मैंने मैथ्स नहीं लिया तो मैं बेसिक मैथ्स का अटेंड नहीं करती क्लास. क्यों? किसी बेसिक मैथ्स के समय लेक्चर्स तो अटेंड किए हुए हैं, किसने किया कि नहीं किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया है बेसिक मैथ्स का लेक्चर अटेंड एक भी. माय डियर, आई एम स्पीकिंग अबाउट फिजिक्स के अंदर अच्छा ऐसा. कैलकुलस. हाँ सर वो तो लिया कैलकुलस, है, तो कैलकुलस के अंदर मैथ्स नहीं किया तुमने? किया है सर. ऐसे ऐसे करते हो यार. नहीं सर, एक्चुअली बेसिक मैथ्स का भी अलग से एक लेक्चर होता है ना अनिल सर का, तब मुझे लगा आप उसकी बात कर रहे हो. भगवान इस लड़की को कौन समझाए. माय डियर स्टूडेंट्स, द मैथ्स व्हिच इज इन्वॉल्वड इन फिजिक्स, जो तुम लोगों ने कैलकुलस पार्ट किया है ना स्टूडेंट्स, वो बेसिक मैथ्स ही है. See, Sham has given the answer. Sham has given the answer. शाम ने आंसर दिया, लेकिन वो किसके लिए दिया? ये पार्ट के लिए दिया है. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? तो बता सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स क्या आंसर आएगा? यस, एनीवन? स्टूडेंट्स, डोंट यू रिमेंबर प्रोडक्ट रूल? y is equal to u into v. हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट श्याम. तो श्याम अनम्यूट करके बोलना, टेक्स्ट क्या कर रहा है? अनम्यूट कर बिंदा, लेट अदर्स आल्सो नो इट करके तेरे को आता है. यू आर आल्सो सर ओमेगा एंड इक्वल्स टू d theta by dt. वो तो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे ओमेगा, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स. चलो बताओ अभी फास्ट, मेरे को बता सकता है?
स्टूडेंट्स U into V मेथड भूल गए तुम लोग, प्रोडक्ट रूल? हाँ स्टूडेंट्स, कैलकुलस की एग्जाम्स है ना मेजर टेस्ट में. कशिश, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. कैलकुलस की एग्जाम्स है कि नहीं है? डिफरेंशिएशन की एग्जाम्स है कि नहीं है? है sir. तो फिर क्यों भूल गए फॉर्मूला? प्रोडक्ट रूल नहीं मालूम? U into V क्या है? गिव मी द फॉर्मूला फास्ट. So keeping U constant, differentiating V, and plus keeping V constant, differentiating U. तो ये क्या यहाँ पे रॉकेट साइंस है? हाँ, कब से पूछ रहा हो करके डिफरेंशिएट करना है तो नहीं कर सकते हो? क्लियरली बोला है व्हाट एक्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू इट. मैंने यूसीएम के बारे में बताया, उसके एग्जांपल्स बताए, नॉन यूसीएम के एग्जांपल्स बताए. नॉन यूसीएम के अंदर स्पीड हमेशा चेंज होगी. जायंट व्हील का एग्जांपल दिया. फिर इन ऑर्डर टू गेट माय फर्स्ट रिलेशन मैंने क्या किया? अ बॉडी इज ट्राइंग टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और मैंने डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने लिया डेल्टा थीटा डेल्टा एस. उसका एक रिलेशन डाल दिया मैंने. फिर मैंने पूछा व्हाट इज डेल्टा एस वी कंसीडर, तो देयर वर टू आंसर्स. एक स्टूडेंट बोलेगा आर क्रॉस डी डेल्टा थीटा और दूसरा बोलेगा डेल्टा थीटा क्रॉस आर. अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो मैं डेल्टा थीटा क्रॉस आर जाऊंगा. फिर मैंने लिमिटिंग रेशियो ले लिया इन ऑर्डर टू लिमिट इट सच दैट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया मेरा, व्हिच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एवरेज ds by dt. ये सब कुछ कैलकुलस में सीखा हुआ है. And if you see one of the page also in calculus, students have given you this formulas over there, but still it's all forgotten. जैसे जैसे आगे जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो. अभी ये फॉर्मूला तुम्हें पता था कि ds by dt भी है, अभी मैंने बोला प्रोडक्ट रूल, तो इंस्टेंटली गिव एन आंसर. शायद देखा होगा कहाँ पे बुक के अंदर, भूल गए होंगे, और अगर नहीं भूले होते तो कब का आंसर दे चुके होते. तो सर अगर अगर y is equal to e, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सर ये हो जाएगा dv by dt. And as if what exactly we consider, what exactly Sakshi said it, sorry, who said it? Prachi, nahi, who said it? Kashish. Differentiating velocity with respect to time. मैंने क्या करोगे तुम? Suppose if I happen to give omega constant, differentiating dr by dt plus differentiating omega, keeping position vector constant. Friends, clear हुआ कि नहीं हुआ? हाँ friends, UV method clear हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ सर. अभी देखो, what is dv by dt? Rate of change of velocity को क्या नाम दोगे? सर acceleration net. ये क्या है? ओमेगा. What is differentiating the position vector with respect to time? Students, जहां जहां पे position change होगा, जहां जहां पे position change होगा, जहां जहां पे position change होगा with respect to time, that will give me what? Velocity. That will give me velocity, and that is going to give me what? V. What is d omega by dt? Rate of change of angular velocity क्या वो है? Angular acceleration. दिया था कि नहीं दिया था काइनेमैटिक्स में? बाइफर्केशन दिया था कि नहीं दिया? लीनियर और एंगुलर में. हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? d omega by dt क्रॉस r. Is this relation clear to all of you all? Yes sir. Please, I'm not only teaching Yash, please, the rest of the students in the group, are you all able to get it? Yes, sir. Yes, sir. Sham, where we? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sham, Tejas, Sania, Soham, Mayank, Alia, Paneri, Dhruv. कितने जन का नाम, लेकिन हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स रिप्लाइड इट. प्राची जाल के समझ में आ रहा है? प्राची गौरव समझ में आ रहा है? Yes, sir. मयंक, ओके, मयंक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऋषित, ऋषित, ओम, ऋषित, ओम. Yes, sir.
ओके, एनी स्टूडेंट्स? अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो तुम्हें कितने एक्सेलरेशन मिलते हैं, 2 एक्सेलरेशन मिलते हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन नेट ओमेगा क्रॉस v is acceleration centripetal, alpha cross r is acceleration tangential. Students, how many acceleration a particle can perform when it is set to revolve in a given plane? 2 accelerations. लेकिन ये किसके लिए है? When the body का speed goes on changing, and ये किसके लिए है? ये simply जाता है for non-UCM के लिए। Since जब भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो हमेशा उसको 2 एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन होगा रेडियली इनवर्ड्स और दूसरा होता है टैंजेंशियल। एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टैंजेंशियल। सेंट्रीपिटल उसको आर्क फॉर्म में लेके जाता है, और अगर बाय चांस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तुमने निकाल दिया तो बॉडी सीधा टैंजेंशियली जाएगा, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। एक सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट, तुम्हें मैंने धागे में स्टोन बांध के दिया है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। मेरे हाथ में अज्यूम करो कि धागा और नीचे मैंने एक ऑब्जेक्ट बांध दिया, फिर मैंने उसको ऐसा रिवॉल्व कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर किसी ने पूछा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्यों मूव हो रहा है, तो उसके लिए एक रेडियल अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए, एक एक्सेलरेशन चाहिए, वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है। अगर बाय चांस मैंने स्ट्रिंग से मैंने सीजर से उस स्ट्रिंग को काट दिया, अगर बाय चांस मैंने उस स्ट्रिंग को काट दिया, तो मेरा स्टोन कैसे जाएगा? टैंजेंशियली चला जाएगा बाहर। तो उसके लिए मुझे टैंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is it clear? Yes, sir. Kashish, are you there? Yes, sir. Kashish, are you there? Yes, sir, I'm there. Are you getting it or not? Yes, sir. नहीं, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है। नहीं सर, जबरदस्ती नहीं। तो टेंशन हो रहा है ना कि कैलकुलस में ये आया और कैलकुलस में हम लोग कर नहीं सक रहे, एग्जाम्स नजदीक आ रही है। हाँ सर, वही। और अगर मार्क्स नहीं मिले ना फिजिक्स में, देख लेना, मैं घर पे आके मिल के जाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स को, सारे के पेरेंट्स को। I want marks, and those who don't give exams, just see what is going to happen to them. You have to give exams. You can't run away from exams also. Can I erase this entirely? Anju, can I erase? Yes, sir. I don't know students, how many of you all are putting down into your books? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कितने जन देख रहे हैं या उसको लिख भी रहे हैं या समझ रहे हैं। I don't know about it, लेकिन बहुत हालत खराब होगी अगर तुमने ध्यान से नहीं किया ये सब कुछ। So in short, now again students, I'm trying to put forward, okay, circular motion अगर किसी ने बोला तो ये ध्यान में रखना, तुम्हारा वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। v डॉट r तुम्हारा 0 है। आई गेटिंग इट? क्या v और फोर्स सेंट्रीपिटल भी परपेंडिकुलर है? हाँ, फोर्स सेंट्रीपिटल एंड वेलोसिटी आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स
सेंट्रीपेटल। फोर्स सेंट्रीपेटल, जिसको मैं कैसे लिखूंगा, FCP। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हो? इसको तुम बोलोगे रेडियली इनवर्ड फोर्स, और ये है कॉज। ध्यान से सुना, ये है कॉज फॉर बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये ध्यान में रखना। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यहां पे अगर मैंने नॉन यूसीएम ले लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स स्पीड remains constant, omega remains constant. I getting it? The body covers equal theta in equal time. Therefore, omega can be written as 2 pi by t या 2 pi f रेडियन पर सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी, मैग्नेट ऑफ वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। या मेरा शेको क्या हो रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है, पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट अबाउट ओमेगा नॉट कांस्टेंट? दैट मीन्स बॉडी कवर्स unequal theta in equal time. Therefore, omega can be written as d theta by dt, radian second inverse. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आया ना? Yes, sir. अभी Yes. तुम यूसीएम के अंदर देखोगे तो यूसीएम के लिए स्टूडेंट्स तुम्हें ध्यान से देखना। अभी देखो यूसीएम के लिए स्टूडेंट्स तुम्हें एक ही फोर्स चाहिए। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, द बॉडी इज मूविंग सर्कुलर मोशन। तुम्हें कौन सा फोर्स चाहिए? फोर्स सेंट्रीपेटल। ये तुम्हें सिर्फ फोर्स सेंट्रीपेटल चाहिए, तो कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन चाहिए? एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल। यानी स्टूडेंट्स यू नीड ओनली वन फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स सेंट्रीपेटल? Force centripetal is given by the formula mass into acceleration centripetal, students. What exactly force centripetal? It's a radially inward force and that is a cause. ये चाहिए मुझे, इसके बगैर तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं। तो मुझे फोर्स सेंट्रिपेटल चाहिए, रेडियल इनवर्ड फोर्स चाहिए। और रेडियल इनवर्ड फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल है। लेकिन अगर मैंने बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ले लिया तो देखो यहाँ पे एक फोर्स टैंजेंशियल जाएगा और एक फोर्स इस तरफ जाएगा। दो फोर्सेस हो गए। ये है तुम्हारा सेंटर। एक होगा फोर्स सेंट्रिपेटल और एक होगा फोर्स टैंजेंशियल। क्यों मेरे पास दो फोर्सेस है? व्हाई दो फोर्सेस? बिकॉज़ सर वी हैव टू एक्सेलरेशंस। एक होगा एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल और दूसरा होगा एक्सेलरेशन टैंजेंशियल। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yani for uniform circular motion, students, for uniform circular motion, how many forces you have? Only one force. How many acceleration you have? Only one acceleration. Radially inward acceleration. What is the formula for acceleration centripetal? Acceleration centripetal was given by what formula? Students, it was given by the formula omega into v. कुछ याद आ रहा है? तो फोर्स सेंट्रिपेटल का फॉर्मूला क्या होगा? सर फोर्स सेंट्रिपेटल का फॉर्मूला मास इनटू ओमेगा इनटू v।
m into omega into v, students. यानी it will be only one force and that is for UCM. ये किसके लिए जा रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. लेकिन जब तुम नॉन यूसीएम के लिए जाओगे तो कितने कितने फोर्स है स्टूडेंट्स? तुम्हें दो फोर्स है. फॉर अ बॉडी मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज यू हैव टू फोर्सेस, दो एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे हमें नेट एक्सेलरेशन मिलेगा. नेट एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल. अगर दो एक्सेलरेशन है तो दो फोर्स मिलेगा. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा सर? दो फोर्स है. एक तो होगा फोर्स सेंट्रिपेटल प्लस फोर्स टेंजेंशियल. कैसे ये आया? हाउ डिड यू गेट इट? सो सिंपल ट्रायंगल लॉ यूज करो ना. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. ये और ये है एक रेडियल और ये. कैन आई शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ? हाँ स्टूडेंट्स, तो देखो ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर्स की से ये हुआ तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अल्फा, या आई कैन कंसीडर फी. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? टू एक्सेलरेशंस एंड टू फोर्सेस आर देयर. नेट इस डायरेक्शन में जाएगा ना. अगर मेरे को किसी ने पूछा कैन यू गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स? यस. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स? will be under root. How are these two forces? So these two forces are at 90 degree. Two vectors at 90 degree. Cos of 90 will be 0. Using parallelogram law of vector additions. What is my answer? Force centripetal the whole square plus force tangential the whole square. How many accelerations I'm having it? So I'm having two accelerations. So what is the magnitude of net acceleration I'm going to consider will be under root acceleration centripetal the whole square plus acceleration tangential the whole square. What is the direction of the resultant? Friends, यहाँ पे what is the direction of resultant? Direction क्या होगा? Direction of resultant क्या होगा? Sir, it's tan phi. Tan phi. Opposite upon adjacent. Accelerations tangential upon acceleration centripetal. So can I get the direction of resultant phi tan inverse? क्या ये clear हुआ सबको? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? आया ना? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स. अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मुझे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं. व्हाट इज द फार्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? व्हाट इज द फार्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? कोई बता सकते हैं? अभी हम लोग ने डिराइव किया था फार्मूला. एनीबॉडी नोस इट स्टूडेंट्स? किसी को पता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? हाँ स्टूडेंट्स, अल्फा क्रॉस. अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ओमेगा कांस्टेंट है? नहीं. ओमेगा को कैसे लिखोगे? डी थीटा बाई डी. यस. यानी ओमेगा चेंज होगा. ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा चेंज होगा. यानी ओमेगा अगर चेंज होगा तो अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी देयर विल बी टेंजेंशियल. लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ओमेगा कांस्टेंट है? हाँ सर कांस्टेंट है. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी? स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? सर यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी विल बी 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि ये यूसीएम है. तो अल्फा क्या बन जाएगा? अल्फा क्या बन जाएगा? अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी. तो अल्फा भी 0 बनेगा ना. अगर अल्फा 0 हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सेंट्रिपेटल है. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज स्टूडेंट्स, ये जो बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है ना सारे फॉर्मूलाज दे आर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. So now this becomes your general consideration for a particle performing circular motion.
तो जब भी सर्कुलर मोशन का कोई भी प्रॉब्लम तुम पहले अटेम्प्ट करना चाहोगे तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फोर्स सेंटीपिटल और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेकिन जैसे तुम यूसीएम पे चले जाते हो, यूसीएम में चले जाते हो, तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट है। अगर तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा डी हमेशा जीरो होगा। अगर ये जीरो आ गया तो तुम्हारा अल्फा जीरो हो जाएगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं। जैसे तुम्हारा अल्फा जीरो हो गया, अल्फा जीरो हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कोई भी पार्टिकल को हम दो एक्सेलरेशन पकड़ते हैं तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन बचेगा? सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज हाउ मेनी लीनियर एक्सेलरेशंस? ओनली वन एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल। हाउ मेनी फोर्स? ओनली वन फोर्स, फोर्स सेंटीपिटल। सेंटीपिटल फोर्स का मतलब क्या है? अ रेडियली इनवर्ट फोर्स, एंड दिस इज अ रियल फोर्स which has origin and source, and that is actually the cause for a body to perform circular motion. स्टूडेंट्स को एक फोर्स चाहिए ना बॉडी को परफॉर्म करने के लिए सर्कुलर मोशन में, तो इट शुड बी अ रियल फोर्स। तुमने जब भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो फोर्स को क्लासिफाई किया होगा, रियल एंड स्यूडो फोर्स। रियल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच हैज ओरिजिन एंड सोर्स, स्यूडो फोर्सेस आर दोस व्हिच आर इमेजिनरी। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स होगा। यहाँ पे यूसीएम में क्या होता है सर? यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी कवर्स इक्वल एंगल एंड इक्वल टाइम, तो ओमेगा को हम 2 पाई बाय कैपिटल लिखेंगे या 2 पाई एफ लिखेंगे। लेकिन जैसे मैं नॉन यूसीएम में चला गया तो सर यहाँ पे वी कांस्टेंट नहीं है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो नहीं होगा, यानी डी ओमेगा डी टी यानी अल्फा रहेगा। अगर अल्फा रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा भाई। लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए। ये तो सर अगर फोर्स सेंटीपिटल है तो एक्सेलरेशन कंजर्वेबल भी जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए, लेकिन उसके साथ में और एक एक्सेलरेशन ऐड हो गया, टेंजेंशियल। तो अगर दो एक्सेलरेशन है फॉर बॉडी, यानी देखो हमेशा जब बॉडी सर्कुलर मोशन में करेगा, देखो ये बॉडी इज मूविंग सर्कुलर मोशन, सी देयर आर टू एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेंटीपिटल चेंज होगा तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी चेंज होगा all the time when the body is performing. So what is the net acceleration? So by using triangle of vector addition, my net acceleration in vector form will be equal to what? A सेंटीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। फोर्स टेंजेंशियल, फोर्स नेट क्या होगा? फोर्स सेंटीपिटल प्लस फोर्स टेंजेंशियल, उसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मिल गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा सर? tan phi ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? फोर्स टेंजेंशियल, एडजेसेंट क्या है? फोर्स सेंटीपिटल या एक्सेलरेशन टेंजेंशियल अपॉन एक्सेलरेशन सेंटीपिटल। ये किसके लिए हुआ? नॉन यूसीएम। स्पीड गोस ऑन चेंजिंग। व्हाट इज द स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट for a vertical circular motion? under root 5 gr. Diametrically opposite points under root 3 gr. Topmost position under root gr. That is non-UCM. लेकिन यहाँ पे तो speed constant होगा throughout. If a body is going in anti-clockwise direction, my angular terms will be along positive z axis. अगर मैंने xy plane में लिया, अगर बॉडी xy plane में लेकिन clockwise जा रहा है तो मेरे angular terms negative z axis पे चले जाएंगे। तभी जाके सबसे पहला रिलेशन जो मैंने लिया था, मैंने क्या लिखा था? Delta S is equal to delta theta cross R, that is for anti-clockwise. Students, क्या ये clear हुआ? Students, is it getting clear? Yes, sir. Yes. क्यों रो रहे हो स्टूडेंट्स? क्यों रो रहे हो? समझ में आ रहा है? साक्षी क्लियर है? साक्षी, सोहम, लवदी, साक्षी क्लियर? Sakshi, are you there or you are not there? If you're not there, I'll remove you then. Yes, sir. Remove you बोला तो फिर answer. Labdi, are you there or not there? Labdi, are you there? Labdi is not there in the class only. Oh, very sorry. अरे यार बोलता हूँ. Kashish, did you understand? Yes, sir. Okay. एक आदत गिर गई है ना, तुम लोग दोनों आंसर देते हो इसलिए एक आदत गिर गई है इधर। लेकिन आज वो लेक्चर में नहीं है, लेकिन कितना कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है ना स्टूडेंट्स? पूरा सर्कुलर तो मोशन उसने बोला कि मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगी। पता नहीं अभी कैसे देखेगी, क्या करेगी।
ऑडियो वीडियो एकदम सही है स्टूडेंट्स? इज ऑडियो वीडियो फाइन विद ऑल ऑफ यू? क्लियर है? यस सर, हाँ सर क्लियर है। ओके, राइटिंग समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर आ रहा है। जबरदस्ती बोल रही है ना? नहीं सर, एक्चुअली मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया तेरे को अभी? पता नहीं सर, ऐसी आँख बहुत दुख रहा है। फीवर वगैरह तो नहीं है? क्या? फीवर तो नहीं है? फीवर नहीं है सर। ओके, स्टूडेंट संभालो यार, सब जगह पे वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, कोरोना हो रहा है, ओमिक्रॉन हो रहा है। टेक केयर। कैन आई इरेज द स्टूडेंट्स? यस सर। My friends, I'm giving you a relation, okay? Let's see who can give an answer. Students, let us say that motion of particle is in xy plane. Okay, circular motion of a particle is in an xy plane. Since मैंने पार्टिकल का तुम्हें एक टॉप व्यू दिया है, and the particle is moving in anti-clockwise, ये सेंटर है, पार्टिकल यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, तुम्हें ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे तुम्हें ये सारे फिजिक्स के टर्म्स कौन से एक्सिस पे एक्ट होंगे वो तुम्हें बताना है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई जे के, कौन से टर्म्स कहाँ पे आएंगे वो तुम्हें बताना है। ओके, आई जे के टर्म्स are, ध्यान से सुनना। ओके, टर्म्स are angular displacement, linear displacement, linear velocity, angular velocity, angular acceleration, tangential acceleration, acceleration centripetal, force tangential, force centripetal, linear momentum, angular momentum, linear force, angular force called torque. चलो, ये सारे टर्म्स कौन से एक्सिस पे होंगे वो तुम्हें बताना है। आई गेटिंग इट? पहले इसका आंसर तुम निकालो और अपने आप से आंसर लिखो, डोंट टेल मी। समझ में आया स्टूडेंट्स क्या मैंने दिया है
है ना, एक प्लेटफॉर्म दिया है और बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, z एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये देखो z एक्सिस मैंने ले लिया है, परपेंडिकुलर प्लेन, ये तुम्हारा y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस है। बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? सर्कुलर मोशन इन एन एक्स वाई प्लेन ले। एग्रीड? तो ये सारे टर्म्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है वो तुम्हें ऐसे कॉलम में लिखना है। तुम अपना लिखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और स्टूडेंट्स, मैंने देखो एक्सेलरेशन टैंजेंशियल भी बोला है, तो ये मोशन कौन सा होगा? क्या ये यूसीएम है या नॉन यूसीएम है? हाँ स्टूडेंट्स, मैंने सारे क्या डायरेक्शन पूछे थे, कौन सा ये सर्कुलर मोशन है? इज इट नॉन सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? अरे यार वो तो बोलो। स्टूडेंट्स, मैंने टैंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो इज इट सर्कुलर और इज इट यूसीएम और नॉन यूसीएम? व्हाट इज एन एग्जांपल फॉर दिस विल बी? इट इज व्हाट? नॉन यूसीएम। तभी जाके मैंने टैंजेंशियल दिया ना स्टूडेंट्स, तभी जाके ये पूछा ना मैंने, ये भी तो पूछा मैंने। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये नॉन यूसीएम का है, तभी जाके अल्फा दिया है ना। ये कौन से एक्सिस पे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? और जैसे तुमने आंसर निकाला, अभी मुझे सबके रिलेशन चाहिए। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, वापस मैं पूछ रहा हूँ। मुझे चाहिए फॉर्मूला ऑफ एस बार, एग्रीड, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर, ओके, फॉर अ बॉडी मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, यानी एस बार तुम्हारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये सारे सब्जेक्ट है। तो एस बार को मुझे थीटा और आर पे लिखना है। ये ध्यान में रखना मैं क्या पूछ रहा हूँ। लीनियर वेलोसिटी आई वांट यू टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये सेकंड वाला, ओके। फिर मुझे एक्सेलरेशन टैंजेंशियल चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन करेक्ट वेक्टर नोटेशंस, ओके। फिर मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम in terms of linear momentum and radius vector. I want you to write on correct vector notation. फिर मुझे चाहिए moment of force, that is torque, in terms of force tangential and position vector. कैसे लिखोगे तुम? Am I getting it? And the last one I wanted is acceleration centripetal in terms of omega and v. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए इन करेक्ट वेक्टर नोटेशन, लीनियर वेलोसिटी आई वांट इन करेक्ट वेक्टर नोटेशन, एक्सेलरेशन tangential in correct vector notation, angular momentum in correct vector notation, torque in correct vector notation, and finally your acceleration centripetal in correct vector notations. Hope the question is clear. Students, क्या ये question clear हुआ सबको? Students, question clear हुआ? For a हाँ body सर। moving in direction, चलो। और ये क्या है? SVALT, ये क्या है? सारे सब्जेक्ट है, उसको एक तरफ लिखना है। Now let's see who's the most intelligent. जिसने आगे का जो भी मैंने सिखाया है वो अगर समझा है, उसने ध्यान से लिखा है, उसने सुना है, वो ही आंसर दे सकेगा। बाकी सारे चुपचाप बैठेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे या आंसर ढूंढना शुरू कर देंगे।
या तो गूगल करोगे, या तो डाउटनेट पे देखना शुरू करोगे, या तो टॉपर्स में देखना शुरू करोगे, या तो मॉड्यूल खोल के बैठोगे और फिर आंसर दोगे। आलिया, अमेरा, अंशु, भैरवी, ध्रुव. There are two Dhruvs. I don't know how exactly it is. Dilsha, Kashish. Question समझ में आया कशिश? Yes, sir. Okay, Mayank, Om, Paneri. Hey, Paneri came in right now? Paneri, Yes, sir. you came in right now, isn't it? No, I was there since the beginning. Oh, so have you understood what exactly I'm speaking about? Yes, sir. Can you give an answer over here to few of the questions? I'm trying. Thank you for your try, okay? Yes, Riya, sir. Prachi, Gaurav, Prachi Zalke. प्राची गौरव, अभी तुम लोग रिप्लाई नहीं करो तो वापस निकाल दूंगा मैं। प्राची गौरव, प्राची साल के, आर यू देयर? डू रिप्लाई। Yes, sir. प्राची गौरव, व्हाट अबाउट यू? तुमने रिप्लाई नहीं किया। प्राची गौरव, she is now in the waiting room. Shyam, Soham, Tejas, Vishal. Dishant, are you there, Dishant? Dishant, are you there? जिस बंदे को सर्कुलर मोशन समझ में आएगा वो ही करेक्ट आंसर देगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो कुछ भी नहीं दे सकेगा। फास्ट। Yes, anybody can answer. Prachi Zalke, are you there? Bhairavi, Prachi Zalke is your friend? Bhairavi? Yes, sir. So why she's not replying? Shall I throw her out of the lectures? Sir, I'm only replying. Friend. Huh? Prachi Gurav is my friend. I don't know who is Prachi Zalke. Okay. Anybody knows Prachi Zalke? Sir, Yes. क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो? हाँ प्राची Zalke, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो?
देखो सारे आंसर्स दे रही है। पहले मुझे बताओ कशिश, ये सारे वेक्टर्स कौन से कैप में होंगे? एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जा रहा है, जल्दी से बताओ। चलो अनम्यूट करो कशिश फास्ट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कशिश जल्दी से बताओ। अगर ये तुम्हें नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं आना चाहिए, ये तुम्हें सारे गलत जाएंगे। अगर तुमने यही सही किया है तो तुमने कहाँ से कॉपी किया है? फिर नहीं सर, कॉपी नहीं किया है मैंने। ये तुम्हें आना जरूरी है। सर एफसीपी आई कैप में जाएगा, एसीपी भी आई कैप में जाएगा। थीटा के बारे में बताओ पहले, थीटा कहाँ पे होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वापस चुप। जे कैप। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एंगुलर टर्म। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव होता है तो एंगुलर टर्म स्टूडेंट्स आर ऑलवेज अलोंग जेड एक्सिस, ये ध्यान में रखना। एंगुलर टर्म्स ऑलवेज अलोंग जेड एक्सिस, यानी थीटा के कैप में होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट y यानी j कैप में होगा। लीनियर वेलोसिटी j कैप में होगा। एंगुलर वेलोसिटी k कैप में होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन k कैप में होगा। एक्सेलरेशन टैंजेंशियल j कैप में होगा। एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल I कैप में होगा अलोंग द रेडियस। एक और मैंने भूल गया, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग I कैप। Force tangential j cap, force centripetal I cap, linear momentum j cap, angular momentum k cap, torque k cap, position vector I told you along I. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कौन कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स? ये क्लियर कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है मालूम है? क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स। Students, a particle is performing circular motion in anti-clockwise direction, right hand screw rule. A cross B will be plus C. A cross B will be plus C in anti-clockwise direction. B cross A will be minus C. तो समझ में आ रहा है? तो अगर तुम देखोगे, तुम बोलोगे अरे हाँ सर, हाँ सर, आप बोल रहे हो, ध्यान से सुनना, acceleration centripetal is directed from the particle towards the center. हाँ सर, ये तो रेडियली इनवर्स होगा। फोर्स सेंट्रिपिटल, हाँ सर, वो भी रेडियली इनवर्स है। पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर किस तरफ जा रहा है? सर रेडियस वेक्टर ऑलवेज शोज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये कौन सा होगा? रेडियस वेक्टर होगा। ये रेडियस वेक्टर है। टैंजेंशियल टर्म्स कौन से होंगे? और द टैंजेंशियल टर्म्स, अगर पार्टिकल को बीच में मैंने काट दिया तो क्या होगा? सर ये जो टैंजेंशियल टर्म्स होंगे ये सारे वाई एक्सिस पे होंगे। देखो पैरेलल टू वाई आते हैं। ये क्या होगा सर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी। ये क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। ये क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन या टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? लीनियर फोर्स या टैंजेंशियल फोर्स। सारे कौन से एक्सिस पे है? सारे वाई एक्सिस। इज दिस एक्सिस पैरेलल टू वाई? यस। इज दिस एक्सिस पैरेलल टू एक्स? यस। समझ में आया कशिश? यस सर। अभी लब्धि होती तो सारे आंसर्स देती वो। हाँ या ना कशिश बताओ? हाँ सर, वो देती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? घर में बातें हो रही हो, उसमें तुम बातचीत कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, एक्चुअली मम्मी है। जेड एक्सिस सारे एंगुलर टर्म्स है। एंगुलर टर्म्स में कौन सा एक्सिस होंगे? सर ये होगा, मेरे को थीटा कौन सा एक्सिस पे होगा? जेड एक्सिस। ओमेगा कहाँ पे होगा? जेड एक्सिस। अल्फा कहाँ पे होगा? जेड एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे होगा? जेड एक्सिस। टॉर्क कहाँ पे होगा? जेड एक्सिस पे होगा। यानी तुम्हें पता चला कौन से टर्म्स कहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो सारे एंगुलर टर्म्स पॉजिटिव। अगर सपोज स्टूडेंट्स यही पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज होता ना तो मेरा ये सारे एंगुलर टर्म्स नेगेटिव जेड में जाता।
क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. मेरे को वापस देखना। ये सर्कुलर मोशन था ना, मैंने इसके पहले वाला दिखाया था। ये देखो, ये कौन सा एक्सिस पे था? जे कैप। ये जो एंगुलर टर्म्स है ना स्टूडेंट्स, वो जेड एक्सिस पे जा रहा है, यानी डी थीटा यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ds यहाँ पे है, और r बार यहाँ पे है, आई कैप। ये j, ये k और ये i, तभी जाके मैंने एक रिलेशन निकाला था तीनों के बीच में। अच्छा चलो ये वाला ले लो। अगर मैं बोलूं सपोज मेरा s बार इज अ रिलेशन, स्टूडेंट्स व्हाट इज s बार? व्हाट इज s बार? s बार यानी कौन सा होगा सर? इट इज j कैप। Is the body moving anti-clockwise? Yes, for anti-clockwise motion, students. What is anti-clockwise? What is anti-clockwise? I, J, K. Subject क्या है मेरा? S bar यानी J cap. Students, what is J cap? What is J? K cross I. What is J? K cross I. Agreed? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, S bar is along J. तो what exactly S bar will be? K पे क्या आ रहा है सर? K पे थीटा आ रहा है. So can I say it's theta cross R? ये तुम्हारा करेक्ट रिलेशन हुआ। ये किसके लिए है? एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्टूडेंट्स, फॉर मोशन इन एंड व्हाट डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज। वही अगर क्लॉकवाइज होता स्टूडेंट्स, तो अगर मैं एस बार लिखूंगा तो ये माइनस एस आएगा थीटा क्रॉस आर। क्लॉकवाइज में मुझे आर क्रॉस थीटा लिखना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, sir. नाउ कैन यू गिव एन आंसर फॉर दिस? चलो वी बार का आंसर निकालो, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का आंसर निकालो, एंगुलर मोमेंटम का आंसर निकालो, टॉर्क का आंसर निकालो, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का आंसर निकालो। अभी तो निकाल सकते हो सारे जन। देखो मैंने सब में सब्जेक्ट दे दिया मैंने, तो तुरंत तुम्हें बोलना है v किस कौन से एक्सिस पे है? v कौन से एक्सिस पे है? देखो v कौन से एक्सिस पे है, कहाँ दिखाया गया है सर? v इज j कैप। v कहाँ पे? j कैप। व्हाट इज j? k क्रॉस i। व्हाट इज j? k क्रॉस i। k में क्या है? k में क्या है सर? ओमेगा आएगा। तो कहना से मेरा v बार विल बी इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। आ गया तुम्हारा आंसर? हाँ या ना? Yes, sir. अभी देखो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। Sir, R into alpha. देखो j, what is j? k क्रॉस i। हाँ k क्रॉस i, तो r into अल्फा, अल्फा क्रॉस r। कशिश क्या कर रही है? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज j। व्हाट इज j? एंटी क्लॉकवाइज में k क्रॉस i आएगा ना? आया ना? Yes, sir. अल्फा क्रॉस r आएगा, r क्रॉस अल्फा नहीं आएगा, अल्फा क्रॉस r आएगा। और ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा होगा। यानी स्टूडेंट्स, जब भी तुम लोगों ने वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो वहां पे मैंने ये एक एग्जांपल दिया था, टॉर्क का एग्जांपल दिया था, और दूसरा एग्जांपल मैंने ये वाला दिया था जानबूझ के। बाकी एग्जांपल्स दिए नहीं थे क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन हुआ नहीं था। लेकिन ये क्लियरली बोला था, अगर मैंने किया तुम्हारे साथ में वो चैप्टर, तो मैंने ये बोला होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंदर हमेशा तुम्हें ये देखने के पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन ओनली और रोटेटिंग। अभी देखो दूसरा वाला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कौन सा एक्सिस पे है? देखो एंगुलर मोमेंटम कौन सा एक्सिस पे है सर? एंगुलर मोमेंटम Sir, k क्या है? R into P. हाँ तो k कैप क्या है? i क्रॉस p। k इज i क्रॉस p एंटी क्लॉक है, तो i क्या है? अरे सर i तो r आएगा, तो r क्रॉस p आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अभी ये ध्यान में रखना है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स है स्टूडेंट्स, तो सारों में क्या होगा? साइन थीटा यूज होगा सारों में, ये ध्यान में रखना। अभी देखो टॉर्क, टॉर्क कौन से एक्सिस पे है सर? टॉर्क इसके के क्या होगा? R into F. देखा? अभी देखो कैसे आंसर दे रही है कशिश। एक्सेलरेशन सेंटीपिटल कौन से एक्सिस पे है? से एक्सेलरेशन सेंटीपिटल इज i। व्हाट इज i? j क्रॉस k। व्हाट इज i?
जे क्रॉस के यानी क्या होगा? जे क्रॉस के यानी क्या होगा? ओमेगा इंटू जी व्हाट इज इट? आई ना जे क्रॉस के ना, तो वी क्रॉस। जी इंटू ओमेगा। एग्रीड? यस Yes, sir. लेकिन अभी ये बताओ ध्यान से, जरा अभी ये देखा, ये क्या है? इज योर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस? हाँ बताओ, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो विल यू राइट v क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस v? नेगेटिव है ना, ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ओमेगा क्रॉस ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल देखो, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल कौन सा एक्सिस पे है? आई कैप एक्स एक्सिस। तो I विल बी व्हाट? J क्रॉस K। यस सर। लेकिन ये पॉजिटिव I के लिए है ना, यस सर। अगर नेगेटिव I होगा तो क्या होगा? ओमेगा क्रॉस V। Are you getting it? स्टूडेंट्स क्या ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए हैं? यस सर। यानी स्टूडेंट्स कभी भी सर्कुलर मोशन के लिए समझो ना, तो हमेशा ये ध्यान में रखना, ये सारे फॉर्मूलाज आगे तुम्हारे यहाँ पे, और हर एक फॉर्मूला को तुम डिराइव कर सकते हो। कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहला ये फॉर्मूला आता है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा डेरिवेटिव्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आएगा। आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होता है। फिर जैसे ये आएगा, इसको अगर तुमने 2 दफे स्टूडेंट्स, अगर तुमने इसको u इंटू वी मेथड कर लिया, प्रोडक्ट रूल कर दिया, तो तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा। और वो सेंटीपिटल और टेंजेंशियल कहाँ के लिए चला जाता है? नॉन यूसीएम में चला जाएगा। अगर मैंने बोला कि बॉडी इज गोइंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, स्टूडेंट्स कांस्टेंट एंगल तो ओमेगा कांस्टेंट होगा ना, तो u इंटू वी मेथड नहीं आएगा। अगर मैं यूसीएम के लिए जाऊं स्टूडेंट्स, अगर मैं यूसीएम, चलो मैं इसको डिफरेंशिएट दिस, स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर यूसीएम, तो तुम क्या बोलोगे? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ओमेगा तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ओमेगा तो मेरा 12 आएगा। सिंपल रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, कांस्टेंट टर्म्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। तो बचा क्या? dr by dt। व्हाट इज dr by dt? v, तो आ गया v, ओमेगा कांस्टेंट आ गया ये। व्हाट इज dv by dt? एक्सेलरेशन सेंटीमीटर। अरे हाँ सर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ये देखो ओमेगा क्रॉस v, परफेक्ट उसी फॉर्म में आया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? पहले मैंने v इंटू ओमेगा लिखा था, लेकिन तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंटीमीटर रेडियली इनवर्स है तो ओमेगा क्रॉस v होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ओमेगा भी चेंज हो रहा है, उसका मतलब नॉन यूसीएम है, तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट रूल आ गया। यानी पहले केस में ओमेगा को कांस्टेंट रखो, डिफरेंशिएट आर, फिर ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, आर को कांस्टेंट रखो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? टैंजेंशियल भी मिलेगा। तो टैंजेंशियल कहाँ पे आता है? टैंजेंशियल नॉन यूसीएम में आएगा, जहां पे ओमेगा चेंज होता रहेगा। व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी? व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी? अल्फा। आर इज कांस्टेंट, तो आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन टैंजेंशियल। समझ में आया स्टूडेंट्स? हाउ डू यू गो अबाउट? यस सर। It's only one student is understanding. It seems like that, and that is Ashish. What about rest of the students? What about the rest of the students? Please, rest of the students, are you getting it? Alia, are you getting it? Alia, kya Alia? Alia, are you getting it? Alia, you're not replying. I'll throw out the lectures. So कोई फर्क नहीं गिरता। थ्रो मी आउट। वैसे भी अभी हार्डली कुछ 8 मिनट बाकी है, आप थ्रो कर दो चलेगा, बिंदास। मैं चली जाती हूँ। कौन बैठता है आपके लेक्चर में? इज इट? No, sir. प्लीज स्टूडेंट्स, अगर तुम नहीं समझोगे, प्रॉब्लम्स आगे जाके टफ गिरेंगे। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। अभी भी कुछ भी नहीं समझता हो तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क मी। अमीरा शेख, आर यू देयर? अमीरा, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, कॉमन फास्ट आंसर। अमीरा, आर यू देयर? देखो पूछ रहा हूँ अमीरा को तो नहीं आंसर दे रही। अंजू, वेयर हुई? यस समझ में आ रहा है?
ध्रुव ने अपना आंसर दिया, ध्रुव, टीपी भाटिया, F2 ने आंसर दिया, 32A ने आंसर दिया है। व्हाट अबाउट मयांक, पानेरी, प्राची जालके, रिया, श्याम, तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। विशाल, तेजस, विशाल, तेजस, Yes, sir. यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स ये सारे फॉर्मूला अभी ध्यान से करना। विदाउट दिस यू कैन नॉट मूव फर्दर अहेड इन सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स। तो अभी ये गार्ड बांध लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोग ने शुरू किया था और आज बहुत सारे फॉर्मूलाज किए। आई गेटिंग इट? तो हमेशा ये ध्यान में रखना, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, जहाँ पे हमेशा वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, सेंट्रिपेटल फोर्स और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर ही होंगे। एग्रीड? अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा को 2π/t लिखोगे या 2πf लिखोगे। अभी देखो ओरली बोल रहा हूँ मैं, तो वहां पे अल्फा तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कैन नॉट बी रिटन एज डी ओमेगा बाई dt विल बी 0, तो अल्फा 0 हो जाएगा। अगर अल्फा 0 हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया वहां पे, और वहां पे सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहां पे सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। अगर वहां पे एक एक्सेलरेशन है तो एक ही फोर्स होगा, फोर्स सेंट्रिपेटल। फोर्स सेंट्रिपेटल का मतलब क्या? रेडियली इनवर्ड फोर्स, रियल फोर्स विच हैज एन ओरिजिन एंड सोर्स। ये हुआ तुम्हारा यूसीएम के लिए, यहाँ पे स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाओगे तो स्पीड चेंज होगा, तो इसको u इंटू वी प्रोडक्ट रूल ले लो। तो अगर तुम्हें ओमेगा को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएट इसको किया, फिर डिफरेंशिएट इसको करो, इसको कांस्टेंट करो, तो तुम्हें दो एक्सेलरेशन मिलेंगे, टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल। उनका नेट निकालो, उनका मैग्नीट्यूड चाहिए तो √80² प्लस AC² एक्सेलरेशन रेडियल स्क्वायर आ गया। फोर्स भी दो नेट होंगे, फोर्स एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रिपेटल हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे अल्फा आएगा, d/dt आएगा। यहाँ पे अल्फा आएगा तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ये नॉन यूसीएम के लिए, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रिपेटल फोर्स होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना सर। और सारे तो मैंने डेरिवेशंस दे दिए, हाउ टू गो अबाउट दिस। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी विल गो ऑन चेंजिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेम है सब जगह पे। फिर मैंने IJK के हिसाब से लिया, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिया, तो मैंने एक पार्टिकल को लिया है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, XY प्लेन में कर रहा है। अगर बॉडी XY प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो मेरा थंब पॉजिटिव z एक्सिस पे गया। तो तुम्हारे आई कैप में कौन से टर्म्स होंगे, जे कैप में कौन से टर्म्स होंगे, के कैप में? तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से क्लासिफाई करो। देखो ना, उसी को मैंने बता दिया, सारे टर्म्स बता दिए। लीनियर टर्म्स कहाँ पे है, एंगुलर टर्म्स कहाँ पे है, और रेडियल टर्म्स। फ्रेंड्स ये रेडियल टर्म्स हुए, ये रेडियल टर्म्स, ये linear terms, tangential terms, and these are angular terms. These are tangential terms, these are radial terms, and these are angular terms. और since anti-clockwise motion है तो IJK का रूल हम लोगों ने यूज किया, जहां पे पहले केस में मैंने S को सब्जेक्ट बनाया, फिर V को सब्जेक्ट बनाया, फिर टेंजेंशियल को सब्जेक्ट बनाया, फिर L को सब्जेक्ट बनाया, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को सब्जेक्ट बनाया। एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल के टाइम पे स्टूडेंट्स वो रेडियल था, इसलिए अपना ये चेंज हो गया। और वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है कैसे पता चला? करेक्ट है कि इनकरेक्ट कैसे पता चला? इसी को देखो, इसी को डिफरेंशिएट करो। स्टूडेंट्स यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट आता है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, तो इसको डिफरेंशिएट करो थ्रू आउट, तो dv/dt आ गया a, ओमेगा कांस्टेंट dr/dt विल बी v। क्या ये क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. Yes, sir. और क्रॉस प्रोडक्ट्स वहां पे sin थीटा होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर अहेड। ओके, आशीष अभी लब्धि को सब कुछ बता देना।